واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، بے شک اور سر بھلا کوئی کیا جانے، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، بے شک اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سبحان اللہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، سبحان جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، غوث اعظم امام متقا والنقا، غوث اعظم امام متقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اب سنیے میں شروع ہو رہا ہوں، اور میری کوشش یہ رہتی ہے کہ آن دا ٹاپک گفتگو کی جائے، بہت جلد اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ، آپ تیار ہیں؟ آپ کی تیاریوں میں اضافہ کرنا، بات ختم کروں گا، پھر مفتی صاحب قبلہ تشریف لائیں گے، میں آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ سنیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کامیابی کی پہچان ہے، کامیابی کا راستہ ہے اللہ سے ڈرنا اور سچوں کے ساتھ ہو جانا۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، ہم دیکھتے یہ ہیں، آپ جانتے ہیں، جب ہم پیر تلاش کرتے ہیں تو پیر میں کرامتیں ڈھونڈتے ہیں، ہمارا پیر اتنا کرامتی ہے، ہمارا پیر اتنا کرامتی ہے، ہمارا پیر نے تو یہ کر کے دکھایا، ہمارے پیر نے تو یہ کر کے دکھایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن تمہیں بتاؤں، جب پیر تلاش کرو تو کرامتی مت ڈھونڈو، کرامت تلاش کرنے میں تمہاری نگاہ چوک سکتی ہے، تمہیں دھوکہ کھا سکتے ہو، وہ جادو بھی ہو سکتا ہے، وہ سپلی علم بھی ہو سکتا ہے، وہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، وہ نظر بندی بھی ہو سکتی ہے۔ پیر کیسا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں پیر دیکھنا ہے تو شریعت پہ چلنے والا دیکھ لو، سبحان اللہ، پیر دیکھنا ہے تو یہ دیکھو نماز تو نہیں چھوڑتا ہے، روزہ تو نہیں چھوڑتا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں ہے، قرآن کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، حدیث کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، بزرگوں کا ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا ہے، کسی بزرگ کی توہین تو نہیں کرتا ہے، وارث پاک مدار پاک کے نام پر اللہ اکبر درندیت تو نہیں دکھاتا ہے، ان کے ناموں کو بدنام تو نہیں کرتا ہے۔ اللہ اللہ پیر چننا ہو تو ایسا چنو جس کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ جائے، سبحان اللہ، جس کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ پیر چننا ہے تو ایسا چنو جس کا دل اس کے رسول کا مدینہ بن چکا ہو، پیر چننا ہو تو ایسا چنو جو تمہیں برائیوں سے بچا کر اچھائی کی طرف لے جائے، پیر چننا ہو تو ایسا چنو اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو نماز پڑھنا سیکھ جاؤ، اگر روزہ نہیں رکھتے ہو تو پیر کے وسیلے سے روزہ رکھنے والے بن جاؤ۔ پیر ایسا چنو کہ پیر تمہیں ماں باپ کی خدمت بھی سکھا دے، پیر تمہیں چھوٹوں کی عزت بھی سکھا دے، بڑوں کی توقیر بھی سکھا دے۔ پیر چننا ہے تو ایسا چنو جو حدیث پہ عمل کرتا ہو، جو قرآن پہ عمل کرتا ہو، جو شریعت پہ عمل کرتا ہو۔ اب آؤں میں تمہیں بتاتا ہوں پیر کیسا ہونا چاہیے۔ آج انسان پیر تلاش کرتا ہے تو پیروں میں کرامتیں ڈھونڈتے ہیں، پیروں میں اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے کہا بھائی تو اپنے پیر کی بڑی کرامتیں گنواتا ہے، میرا پیر یہ ہے، میرا پیر یہ ہے، میرا پیر یہ ہے۔ میں نے کہا ظہر کی ہم نے پڑھائی ہے، تیرا پیر تو ظہر میں بھی نہیں دکھائی دیا، عصر کی ہم نے پڑھائی ہے، تیرا پیر تو عصر میں بھی نہیں آیا ہے، تیرا پیر نے تو مسجد کو نہیں دیکھا ہے، تو کہتا ہے بڑا کرامتی ہے، تو کہتا ہے بہت پہنچا ہوا ہے، تو کہتا ہے بہت بلندیوں پہ ہے۔ میں کہتا ہوں کیسا ہوا پہنچا ہوا؟ کہ حضرت بہت پہنچے ہوئے۔ میں نے کہا کتنا پہنچا ہوا؟ حضرت مدینے میں پڑھتے ہیں، مدینے میں۔ میں نے کہا ٹھوس ہندوستان میں رہا ہے، نماز مدینے میں پڑھتا ہے۔ یہ پیر کیسا ہے؟ یہ پیر نہیں ہے، یہ چور ہے، یہ پیر نہیں ہے، یہ ڈکیت ہے، یہ پیر نہیں ہے، یہ لٹیرا ہے۔ چور آئے گا صرف مال لے کے جائے گا، ڈکیت آئے گا صرف مال لے کے آئے گا، اگر چور آئے گا تو صرف تمہارے مال پہ قبضہ کرے گا، لیکن یہ ڈکیت جس دن آ گیا، پیر کے نام پر جس دن چور آ گیا، سمجھ لو تمہارا مال بھی لے کے جائے گا، دھڑیے بھی لے کے جائے گا، لفافے بھی لے کے جائے گا، ساتھ ساتھ میں تمہارے ایمان کو بھی لے جائے گا، عقیدے کو بھی لے جائے گا۔ پیر چننا ہے تو کیسا چنو؟ میں بتاؤں، سرکار غوث اعظم سے پوچھتے ہیں جو تیرا بھی پیر ہے، تیرے باپ کا بھی پیر ہے، جو پیروں کا پیر ہے، جو تمام ولیوں کا سردار ہے۔ آج یہ
कहते हैं शरीयत अलग है, आज ये कहते हैं मौलवी अलग है, आज ये कहते हैं मुफ्ती अलग है, पीरी अलग है। लेकिन आओ उससे पूछो जो पीरों का पीर है वो कौन है? वो बगदाद का गौसे आजम है। जब मैंने कहा वो बगदाद के गौसे आजम तुम बताओ, क्या पीर अलग होता है? क्या फकीर अलग होता है? क्या मुफ्ती अलग होता है? तो बगदाद के गौसे आजम ने अपने कसीदे में इरशाद फरमाया, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा वमिलतु सादा मिन मौलल मवाली। सुनो सुनो, मैं इल्म सीखता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मखदूम सुन्ना, फैजान औलियाए किराम, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब तौला। सुभान अल्लाह। इसकी और ही को कम कीजिए, और ही को कम कीजिए। समझ में तो आ रहा है ना आपसे? और हुजूर से पाक इल्म सीखने के बाद फिर ये फरमाते हैं, आप फरमाते हैं नजरतु इला बिलादिल्लाहि जमा कफर दलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। आप फरमाते हैं मैं इल्म सीखा, इतना सीखा, अल्लाह ने कुतुब बना दिया और फिर मेरी नजर का कमाल ये हो गया, मैं रहता बगदाद में हूँ लेकिन दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे राई की दाते, जैसे हथेली पर राई के दाने को देखता हूँ। अरे जब मुस्तफा का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में रहने के बाद में दुनिया को देख सकता है, फिर मदीने वाले मुस्तफा की क्या शान होगी। तभी तो बरेली का इमाम कहता है और कोई गैर क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो दुरूद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह, या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, वलियों में सिर्फ करामतें ढूंढते हो, पीरों में सिर्फ करामतें ढूंढते हो। आओ वलियों का दूसरा पहलू देखें, आओ पीरों का दूसरा पहलू देखें। पीर सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता है, वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता है, वली अपने खाने से भी पहचाना जाता है, वली कौल से भी पहचाना जाता है, वली फेल से भी पहचाना जाता है, वली अपनी मईशत से भी पहचाना जाता है, वली अपने आमाल से भी पहचाना जाता है, वली अपने अखलाक से भी पहचाना जाता है, वली अपने नेचर से भी पहचाना जाता है, वली अपने कल्चर से भी पहचाना जाता है, वली अपने आइडियल से भी पहचाना जाता है। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, वलियों की जिंदगी से मैं तुम्हें रूशनास कराता हूँ, उसके बाद अपनी बात खत्म करता हूँ। एक नौजवान है जो कायमुल लैल है, साइमुन नहार है, रातों रात अल्लाह की इबादत करता है, दिन दिन रोजे से रहता है, अल्लाह अल्लाह, खाने को कुछ नहीं है, कई कई दिन फाके से हो जाते हैं। आज कौन है ऐसा जो कई कई रोज खफाका करता हो, अल्लाह अल्लाह थोड़ा सा कुछ हो जाए हम आओ बुका करना शुरू करते हैं। लेकिन आओ वलियों की जिंदगी पढ़े। एक नौजवान है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, जवानी की दहलीज पर है, अल्लाह अल्लाह, जवानी की दहलीज पर है। वो जवानी अंधी होती है, जवानी में गुना गुना नहीं लगता, जवानी में अय्याशी अय्याशी नहीं लगती, जवानी में मक्कारी मक्कारी नहीं लगती, अल्लाह अल्लाह। उसी जवानी के आलम में वो नौजवान है, जब उसको भूख ने ज्यादा सताया, कई दिन से खाना नहीं खाया है, भूख की शिद्दत उसको तड़पा रही है, पेट कह रहा है कुछ खाने को मिल जाए, हलक कह रहा है कुछ पीने को मिल जाए, लेकिन ना खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए कुछ है। अल्लाह अल्लाह, वो अल्लाह वाला वो नौजवान जंगल में चला गया, कोई गिरी पड़ी चीज मिल जाए उसको उठाऊंगा, फिर भूख की शिद्दत को खत्म कर लूंगा, कोई गिरी हुई चीज मिल जाएगी उसको खाऊंगा, मेरी भूख की शिद्दत खत्म हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, वो जंगल चला गया, जंगल चला जाने के बाद में करीब में एक दरिया बहता है, अब दरिया के किनारे खड़ा है, काश कोई चीज मिल जाए, मेरी भूख खत्म हो जाए, मेरी भूख की शिद्दत में कमी आ जाए। अल्लाह अल्लाह, क्या होता है, एक सेब बहता हुआ आता है, उसको उसने उठाया, उठाने के बाद में खा लिया। जब सेब खाया कहने लगा बड़ा टेस्टी है, बड़ा लजीज है, सेब तो खा लिया, अभी पूरा नहीं खाया था। अल्लाह अल्लाह, कहने लगा भूख तो मिट गई है, भूख की शिद्दत तो खत्म हो गई है, लेकिन अल्लाह अकबर, नफ्स जाग गया, ज़मीर में इंकलाब पैदा हो गया, ईमान जाग गया। कहने लगा नौजवान, तूने सेब खाने के बाद में अपनी भूख को तो खत्म कर लिया है, तूने सेब खाने के बाद में अपनी भूख की शिद्दत को खत्म कर लिया है, क्या तूने सेब के मालिक से पूछा है, क्या तूने सेब के मालिक से इजाजत ली है? अल्लाह अल्लाह, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या उस नौजवान ने सेब चुरा कर खाया था, क्या किसी से छीन कर खाया था, क्या डकैती डाल कर खाया था, अल्लाह अकबर, क्या डाका डाल कर खाया था, क्या किसी से हड़प कर खाया था? आप जवाब दोगे नहीं नहीं, हड़प कर नहीं खाया था, छीन कर नहीं खाया था, चोरी करके नहीं खाया था, सिर्फ दरिया में बहता हुआ आ रहा था, उसको उठा के खाया था। अल्लाह अल्लाह,
فتویٰ یہ کہتا ہے یہ چوری نہیں ہے، فتویٰ یہ کہتا ہے یہ ڈاکہ زنی نہیں ہے، فتویٰ یہ کہتا ہے یہ حرام نہیں ہے، لیکن سنو مفتی فتوے پہ عمل کرتا ہے، لیکن متقی اللہ والا تقوی پہ بھی عمل کرتا ہے۔ تقوی یہ کہتا ہے اگر اس کو بھی کھایا جائے تو بغیر پرمیشن کے نہ کھایا جائے، فتویٰ کہتا ہے کھا لیا جائے تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن تقوی کہتا ہے شبہات سے بھی بچا جائے۔ اللہ اللہ، اس نوجوان نے سیب کو کھایا، زمین پکار اٹھا، نوجوان تجھے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، پورے گاؤں کی کالونی کھائی، پورے گاؤں کا غلہ کھا لیا، لیٹرینوں کے نام پر نریگا کے نام پر غریبوں کا ہڑپ لیا، یتیموں کا کھا لیا، بیواؤں کا کھا لیا، جھوٹ بول کے کھایا، سود لے کے کھنایا، حرام کام کر کے کھایا۔ کبھی ہمارا ضمیر نہیں جاگتا ہے، کبھی ہمارے ایمان میں حرارت پیدا نہیں ہوتی ہے، کبھی ہمارے پیٹ میں درد نہیں ہوتا ہے۔ جیسا بھی ہو آ جائے، حرام کا ہو تو آ جائے، سود کا ہو تو آ جائے، جیسا بھی ہو آ جائے، لیکن اللہ اللہ، وہ نوجوان کیسا نوجوان ہے، چرا کے نہیں کھایا ہے، بہتا ہوا کھایا ہے، کھا تو لیا ہے، لیکن اللہ سے ڈر تو دیکھو، دل دیکھو کیسا دل ہے۔ دل دنیاوی لذتوں سے پر نہیں ہے، بلکہ اس کے رسول سے لبریز ہے۔ دل ہے تو ایسا دل ہے، اللہ اکبر، اس کے رسول کا مدینہ بنا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ اللہ اللہ، وہ نوجوان کہتا ہے اگر اللہ نے پوچھ لیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو ایک سیب کھا کر آیا ہے، کیا مالک سے اجازت لی ہے؟ تیری تو نمازیں برباد ہو جائیں گی، تیرا تو روزہ برباد ہو جائے گا، تیری تو تمام عبادات غارت ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، نوجوان کے دل میں اللہ کا ڈر دیکھیے، نوجوان کے دل میں اللہ کا خوف دے دیے۔ اے کرنپور رتنپور قربہ جوار کے زندہ دل مسلمانوں، اگر تمہارے جسموں میں گوشت کا لوتڑا ہے، پتھر کا ٹکڑا نہیں ہے، تو ضرور ایمانوں میں انقلاب پیدا ہونا چاہیے، ضرور آج ضمیر جاگنا چاہیے۔ اور جب غوث پاک کے جلسے میں آئے ہو تو غوث اعظم کے پیغام کو بھی لے کے جاؤ گے، غوث اعظم کی تعلیم کو بھی لے کے جاؤ گے، صرف کرامت کو سن کے نہیں جاؤ گے، غوث اعظم نے جو میسج دیا اس میسج کو بھی لے کے جاؤ گے۔ اللہ اللہ، نوجوان اب اللہ اکبر اسی فکر میں ہے کہ مالک کہاں تلاش کیا جائے، باغیچے کا اونر کہاں ملے گا۔ دریا کے قریب چل دیے۔ اللہ اللہ، کچھ دور جانے کے بعد میں ایک باغیچہ نظر آتا ہے، اس میں انٹری کی، انٹری کرنے کے بعد میں کچھ نوکر کام کر رہے ہیں۔ نوجوان نے سلام کیا، سلام کے بعد میں کہا یہ بتاؤ باغ کا مالک کہاں ہے، یہ بتاؤ باغیچے کا اونر کہاں ہے۔ نوکروں نے کہا یہیں پر رک جاؤ، ابھی ابھی آتا ہوگا۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سنو ذرا آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، اس نوجوان نے جب اپنا سوال رکھا وہ وہیں پر رک گیا۔ اللہ اللہ، کچھ دیر کے بعد میں ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں۔ وہ بزرگ کی ہے، بزرگ کی حیت ایسی ہے، بزرگ کا اللہ اکبر کبیرہ مقام یہ ہے، وہ بزرگ تشریف لا رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہے۔ اللہ اکبر، ہوتا کیا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پہ کچھ جاری ہے۔ اللہ اللہ، جن کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آ رہا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے۔ اب نوجوان نے دیکھا، سوچ لیا یہی باغیچے کے مالک ہوں گے، آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھنے کے بعد میں کہا السلام علیکہ یا شیخ۔ شیخ نے جواب دیا وعلیکہ السلام یا شباب، اے نوجوان تم پر بھی سلامتی ہو۔ اللہ اللہ، دعا سلام کے بعد میں نوجوان ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور ایک غلطی لے کے آئے ہوں، لہٰذا مجھے معاف کر دیا جائے، ایک خطا ہو گئی ہے، پلیز پارڈن می، مجھے بخش دیا جائے۔ اللہ اللہ، بزرگ نے کہا کیا معاملہ ہے؟ نوجوان نے کہا تمہارے باغیچے کا ایک سیب کھایا ہے، اس کو معاف کروانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اللہ، بزرگ نے کہا کیا چوری کر کے کھایا ہے، کیا چھین کے کھایا ہے، کیا ڈکیتی ڈال کے کھایا ہے، کیا باغیچے سے توڑ کے کھایا ہے؟ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا بزرگ نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے، میں نے چوری نہیں کی ہے، میں نے ڈکیتی نہیں کی ہے، میں نے کسی سے چھینا نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے اللہ اللہ، تمہارے باغیچے کا ایک سیب دریا میں بہ کر جا رہا تھا، اسے اٹھا کے کھا لیا ہے، اسے اٹھا کے کھا لیا ہے۔ اللہ اللہ، جب نوجوان کی بات کو بزرگ نے سوچا سنا تو سننے کے بعد میں غور و فکر کرنے لگے۔ اللہ اللہ، اللہ والے نے اللہ والے کو پہچان لیا، کہنے پہ مجبور ہو گئے، دل میں کہنے لگے یار لوگ تو پیٹیوں کی پیٹی لے جاتے ہیں، لوگ تو پیڑ بھی اپنے گھر لے جاتے ہیں، لوگ تو کھانے کے چکر میں کچا بھی نہیں دیکھتے ہیں، کبھی چوری کرتے ہیں، کبھی ڈکیتی ڈالتے ہیں۔ یہ نوجوان کیسا نوجوان ہے، یہ جوانی کی دہلیز پر ہے، جس میں انسان شراب بھی پیتا ہے، جس میں انسان عیاشی بھی کرتا ہے، جس میں انسان مکاری بھی کرتا ہے، لیکن یہ نوجوان کیسا ہے، چوری کر
करके नहीं खाया है, इसका दिल तो देखो अल्लाह के डर से भरा हुआ है, इसका दिल तो देखो इसके रसूल से लबरेज नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्ग ने सोच लिया ये कोई नौजवान आम नौजवान नहीं है, ये तो अल्लाह का वली मालूम होता है, ये तो अल्लाह का नेक बंदा मालूम होता है, ये तो मुत्तकी मालूम होता है, ये तो परहेजगार मालूम होता है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के वली ने कहा हम तुम्हें माफ कर देंगे, बट हमारे पास एक कंडीशन है, उस कंडीशन को तुम्हें फॉलो करना होगा, उस कंडीशन को तुम्हें कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही हम तुम्हारे सेब को माफ करेंगे। अल्लाह अल्लाह, नौजवान ने सोचा एक सेब खाया है, एक सेब की कीमत कितनी होती है? 10-20 या ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए की होती है ना। अल्लाह अल्लाह, सोचा जब एक छोटा सा सेब खाया है, इसके खाने के बाद में कितनी बड़ी शर्त होगी, छोटी मोटी शर्त होगी, उसको पूरा कर दूंगा। कहा हुजूर बताओ कौन सी शर्त है, किसे कंप्लीट करना है? अल्लाह अल्लाह, उस बुजुर्ग ने कहा था इतने महीने तुम्हें मेरे बागीचे की खिदमत करनी पड़ेगी, बागीचे की सिंचाई करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरे यहाँ नौकर रहना पड़ेगा। नौजवान सोचने लगा यार एक सेब खाया है, चोरी करके नहीं खाया, कितनी बड़ी शर्त रख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी शर्त रख रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा सोचने लगे, लेकिन फिर ज़मीर ने अंगड़ाई ली। अल्लाह अकबर कबीरा, खौफे इलाही जोश मारता है, कहने लगा ए नौजवान, अगर अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, मरना है, अगर अल्लाह को मुंह दिखाना है और वहां रुसवा नहीं होना है, वहां शर्मिंदा नहीं होना है, तो फिर बुजुर्ग की खिदमत करनी पड़ेगी, बुजुर्ग की बात माननी पड़ेगी, उसकी अल्लाह ऊपर शर्त को फॉलो करना पड़ेगा, उसकी बात को कंप्लीट करना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, कहने लगे हुजूर मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मुझे आपकी कंडीशन मंजूर है। अल्लाह अकबर कबीरा, यह नौजवान अल्लाह अल्लाह बागीचे की खिदमत करने लगा। अल्लाह अल्लाह, पूरा दिन खिदमत करता है, बड़ी लगन से काम करता है। ए नौजवानों, अब आगे सुनो क्या होता है। बड़ी लगन से काम करता है, पोजीशन यह है कि दिनों में रोजे रखता है, जब रात होती है थक जाता है, लेकिन सोता नहीं है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर क़ियाम करता है, अल्लाह की बारगाह में इबादत करता है। वो बुजुर्ग नोट कर रहे हैं, वो दिन को भी देख रहे हैं, वो रात को भी देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्ग कहने लगे ये नौजवान कैसा नौजवान है, दिन में तो खिदमत करता है और रात को अल्लाह की इबादत करता है। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्ग आज दुनिया कहती है ये सजा थी, लेकिन मेरा जुमला सुनो, मेरा इश्क क्या कहता है, ये सजा नहीं थी, बल्कि अल्लाह वाले ने पहचान लिया था ये कोई आम बंदा नहीं है, ये अल्लाह का वली है, और अल्लाह का वली अपने वली को ऊंचे मकाम पर पहुंचाना चाहता था, और उसके तकबे में अल्लाह अकबर और 4 चांद लगाना चाहता था। अल्लाह अल्लाह, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, अल्लाह अल्लाह, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म, फैज़ाने औलियाए किराम, जश्न गौसुल वरा, सरज़मीने करमपुर, मुफ्ती सैयद अफरोज़ मियां साहिब तुल्ला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली उसके दिल को साफ करना चाहता था, अल्लाह का वली उसके दिल को सैकल करना चाहता था, उसमें 4 चांद लगाना चाहता था, मराती में बुलंदी पर पहुंचाना चाहता था। अल्लाह अल्लाह, जब वो दिन पूरे हो गए, फिर आ गए हुजूर अब तो माफ कर दीजिए, लिहाजा अब तो हमारे सेब को माफ कर दिया जाए। इधर देखें, मैं तेजी से अपनी बात खत्म कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, कंट्रोल करना जानता हूं, लेकिन जल्दी है, वक्त की इल्लत है। आप मेरी तरफ देखिए, बात बहुत जल्दी पूरी कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, नौजवान ने कहा हुजूर अब तो हमने तुम्हारी शर्त के मुताबिक पूरा कर दिया है, हमने तुम्हारी शर्त को पूरा कर दिया है, अब लिहाजा हमारे सेब को माफ कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्ग ने देखा यार ये नौजवान दोबारा फिर आ गया है, अरे शर्त पूरी हुई थी ऐसे ही वापस चला जाता। अल्लाह अल्लाह, लेकिन फिर भी ये आ गया है। अल्लाह से डर तो देखिए, खौफ इलाही तो देखिए। अल्लाह अल्लाह, होता क्या है, बुजुर्ग ने कहा हम तुम्हें अल्लाह अकबर कबीरा माफ कर देंगे, तुम्हारे सेब को माफ कर दिया जाएगा, बट हमारे पास एक कंडीशन और है, हमारे पास अल्लाह अकबर कबीरा एक शर्त और है, हमारे पास एक शर्त और है, वो शर्त ये है। अल्लाह अल्लाह, नौजवान ने कहा था कौन सी शर्त है, अब तो छोटी मोटी शर्त रह गई होगी, उसे भी पूरा कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह, नौजवान ने कहा बुजुर्ग जल्दी बताइए, शेख आजम जल्दी फरमाइए कौन सी शर्त है। बुजुर्ग ने कहा था आई हैव वन डॉटर, यू मस्ट मैरी हर, मेरे पास एक बेटी है, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। अल्लाह अल्लाह, नौजवान सोचने लगा, अल्लाह अकबर कबीरा, नजरें नीचों को हो गई। अल्लाह अकबर, बुजुर्ग ने कहा शादी तो करनी होगी, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन है, उसकी भी सिफात है। सुनो मेरी बेटी जरूर है, लेकिन आंखों से नहीं देख सकती है, कानों से सुन नहीं सकती है, जबान से बोल नहीं सकती है, हाथ पैरों से अपाहिज है। एक करनपुर के मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ
ऐसी लड़की हो तो कौन उससे निकाह करेगा, कौन उससे शादी करेगा। आज रिश्ते देखना चाहते हो तो उसके नाखून भी देखते हो, आज रिश्ते देखना जानते हो तो उसके बालों को भी देखते हो, आज रिश्ते देखना चाहते हो तो उसकी इमारत को भी देखते हो, आज रिश्ते देखने जाते हो अल्लाह ऊपर उसे चला फिरा के भी देखते हो, उसके पैरों को भी देखते हो, कहीं 5 उंगली की जगह 6 उंगली तो नहीं है, कहीं उसकी नाखूनों में कोई कमी तो नहीं है। ए नौजवानों, आज तुम हर चीज पर नजर रखते हो, लेकिन अल्लाह अल्लाह नौजवान के सामने कैसा इम्तिहान होगा आ गया है। कहने लगे तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, अंधी भी है, बहरी भी है, गूंगी भी है, हाथ पैरों से पाहिश है। अल्लाह अल्लाह सोचने लगे, आंखों में आंसू आ गए, यार एक सेब खाया था, कितनी बड़ी मुसीबत बना आई है। अल्लाह 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 अकबर सोचने लगे, ये तो पूरी जिंदगी का मैटर है, ये तो पूरी लाइफ का मैटर है, कहाँ उठाऊंगा, कहाँ खिलाऊंगा, कैसे इसको पिलाऊंगा, ये तो पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये सोच ही रहे थे, फिर ईमान ने जोश मारा, इसने रसूल फिर जोश मारता है, अल्लाह अकबर, ज़मीर में फिर इनकलाब पैदा हो गया। वो जवान, दुनियावी लज़्ज़तें फ़ानी है, दुनियावी ख्वाहिशात यहीं पर खत्म हो जाएंगी, तुझे मरना है, मरना है, मरना है, तुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। अगर अल्लाह की बारगाह में जाना है, रसूलुल्लाह की बारगाह में सुरखरू होना है, तो जरूरी यह है कि बुजुर्ग की बात को मानना पड़ेगा। कहने लगे हुजूर मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्ग ने कहा क्या तूने सोचा नहीं अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करेगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। अल्लाह अल्लाह, वो जवान ने कहा था बुजुर्ग सुनो, मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे परवाह है तो अल्लाह की परवाह है, मुझे परवाह है तो रसूलुल्लाह की परवाह है, मुझे दुनिया से मतलब नहीं, मुझे तो अल्लाह के रसूल से मतलब है। बल्कि भाई कहो जो बरेली का ईमान कहता है, तुम्हें जाना तुम्हें माना, मैंने कहा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह 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 कबीरा, या रसूल, या रसूल, जिंदा अल्लाह 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 अकबर। कहा निकाह पे राजी हो, हाँ हाँ निकाह पे राजी हूँ। क्या कुछ सोचना नहीं है? नहीं सोचना है, सोच लिया मरना है, मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। आज मैं तुमसे कहता हूँ अल्लाह अकबर, नमाज छोड़ो कभी ज़मीर नहीं जागता, रोजा छोड़ो कभी ज़मीर नहीं जागता, दूसरों की माँ बहनों को तको कभी ज़मीर नहीं जागता, कितने गुनाह हम करते कभी हमारे दिल में कभी अल्लाह का खौफ नहीं आता। अल्लाह अल्लाह, शराब हम पिए कभी हमारे दिल में डर नहीं आता। अल्लाह अकबर, दाढ़ी हम मुड़ाए, मुस्तफा की प्यारी सुन्नत को गंदी नालियों में हम बहाए, कभी हम नहीं सोचते, कभी हमें डर नहीं लगता। अल्लाह अल्लाह, वो जवान ने कहा उसूल निकाह पढ़ाया जाए। अल्लाह अकबर, शरीयत के अकॉर्डिंग निकाह पढ़ा दिया गया। जब फर्स्ट मुलाकात का नंबर आता है, ये नौजवान गया। अब सुनो आगे क्या होता है। अल्लाह अल्लाह, ये नौजवान अपनी बीवी से मिलने के लिए गया। अल्लाह अल्लाह, क्या हालत होगी मिलने की। अल्लाह अकबर, जो आंखों से अंधी है, जो कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथ पैरों से पाहिश है। अल्लाह अल्लाह, ये नौजवान कमरे में गया। कमरे में जाने के बाद में देखा कोई लाइट नहीं जल रही है, कोई बल्ब नहीं जल रहा है, लेकिन उसके चेहरे से ऐसी शुआएं निकल रही है जिसकी शुआओं से पूरा कमरा महक रहा है, पूरे कमरे में रोशनी रोशनी नजर आ रही है। अल्लाह अल्लाह, वो कोई अपाहिज नहीं, ऐसा लगता है जन्नत से हूर उतर आई है, उसने जमाल की मलका हो। वापस आ गए, कहने लगे हुजूर आपने जो कंडीशन बताई थी, लड़की उसके अपोजिट है, लड़की तो ऐसे नहीं है, उसकी आंखें ऐसी हैं कि उसकी आंखों में अल्लाह के जलवे नजर आ रहे हैं, उसका चेहरा ऐसा है कि चेहरे को देखने के बाद अल्लाह याद आ रहा है, उसके हाथ पैर ऐसे हैं ऐसा लगता है अल्लाह अकबर कि शरीयत पे चलने वाले हैं। कहा हुजूर घर की खवातीन से पूछ लो, कहीं दुल्हन को सजाने में कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं दुल्हन को तैयार करने में कोई खता तो वाकई नहीं हो गई। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग ने कहा बेटा हमने तुमसे झूठ नहीं बोला है, लेकिन सुनो सुनो, हमने हकीकी माना मुराद नहीं लिया है, हमने मचासी माना मुराद लिया है। मेरी बेटी अंधी है, अंधी है, अंधी है, हाँ इसलिए अंधी है कभी मेरी बेटी ने गैर महरम को नहीं देखा है। मेरी बेटी बहरी है, बहरी है, बहरी है, हाँ इसलिए बहरी है कभी मेरी बेटी ने गैर महरम की आवाज अपने कानों से नहीं सुनी है। अल्लाह अल्लाह, हाँ मेरी बेटी गूंगी है क्योंकि इसलिए मेरी बेटी ने कभी झूठ नहीं बोला है। हाँ मेरी बेटी हाथ पैरों से पाहिज है, इसलिए कभी अल्लाह अकबर शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी ने हाथ पैरों को नहीं चलाया है। अब मैं तुम्हें जुमला दे रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग कैच करते हैं। सुनो सुनो, जब इतना पाकीज़ा बाप हो, इतनी पाकीज़ा माँ हो, और जब इतने बातहारत दो तनों का मिलन होता है, जब बगदाद में जाके गौसे आजम का जन्म होता है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सुन्ना, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान। हर घर में गौस पैदा नहीं होते, हर घर में गौस पैदा नहीं होते। जब हराम खिला रहा है तो शक्तिमान या पबजी पैदा होगा, गौस पैदा नहीं हो सकता है। गौस पैदा होने के लिए इतनी पाकीज़ा माँ चाहिए, गौस पैदा होने के लिए इतना पाकीज़ा बाप चाहिए। अगर आज भी अपने बच्चों को नेक बनाना चाहते हो तो शर्त ये है, कंडीशन ये है, रिस्क हराम से बचो, रिस्क हलाल कमाओ और इसके हलाल खिलाओ। अरे गौसे आजम नहीं पैदा हो सकता है, लेकिन गौसे आजम का गुलाम तो जरूर पैदा हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कौन था ये नौजवान? ये नौजवान गौसे पाक के वालिद थे। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कौन थी ये पाकीज़ा खातून? ये पाकीज़ा खातून फातिमा उम्मुल खैर गौसे पाक की वालदा थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी हालत। आज हम अपने घरों का मुहासबा करें, आज हम अपने घरों को देखें। मैंने बात पूरी कर ली है, लास्ट पैगाम ये है, लास्ट मैसेज ये है आपके लिए। ये गौसे पाक की आज हम सिर्फ करामतें सुनते हैं, कभी वलियों के इस पहलू को भी देखा करो, वलियों की ज़िंदगियों को भी देखा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारे घरों में कितनी उरियानियत है, आज हमारे घरों में कितना नंगापन है। कभी हमने गौर किया है? कभी हमने सोचा है? अल्लाह अकबर। अब तो एक और मुसीबत चल पड़ी है हमारे यहाँ पर। लास्ट पैगाम है, ज़रा सुन लो नौजवानों। एक मुसीबत हमारे यहाँ पर चल पड़ी है और मैं अपनी माँ बहनों को भी पैगाम देना चाहूँगा। जब बारात आती है ना, बारात, तो दूल्हा का इस्तकबाल किया जाता है। हाँ, जरूरी है। केक से रेबिन काटा जाता है। कौन करता है इस्तकबाल? कौन? 15 साल से लेकर 30 साल लड़कियां, मेकअप की हुई, बाल कटे हुए, आधे आधे कपड़ों में इस्तकबाल दूल्हा का। दूल्हा शराबी या उसके साथ के कुछ लड़के शराबी या याश मक्कार। और हद तो ये है, अगर आला हजरत का भी ऐसे इस्तकबाल किया जाए तब भी जायज़ नहीं। बेशक किसी का भी। कौन करता है? दूल्हा के साथ कुछ लोफर भी हैं, अय्याश भी हैं। हमारी नौजवान बेटियां 15 साल से लेकर 30 साल तक हाथों में फूलों के तश्त होते हैं, फूलों की बरसात होती है, गुलाब बखेरे जाते हैं। गुलाब कौन है ये? कहाँ से आई हैं? क्या आसमान से बारिश में नाजिल हुई हैं? हमारी बच्चियों ने तो अमेरिका बहुत दूर की बात, मुरादाबाद की मार्केट नहीं देखी। ये मगरिबी तहजीब कहाँ से आ गई? ये कल्चर कहाँ से आ गया? कौन है ये बेटियां? कोई हमारी बेटी है, कोई हमारी बहन है, कोई हमारी बहू है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम ही में से हैं, किसी और की नहीं है। बाप भी मौजूद है, भाई भी मौजूद है, बेटा भी मौजूद है, चचा मामा खालू सब मौजूद हैं, बड़ी बड़ी लंबी नाक वाले मौजूद हैं, जिनकी मूँछों पे चराग जलते हैं वो भी मौजूद हैं। कभी हमीयत नहीं जागती, कभी ज़मीर में इनकलाब पैदा नहीं हो सकता। कुछ हो जाए तो हज़रत पता नहीं किसने क्या करवा दिया, पता नहीं हज़रत किसने क्या करवा दिया। अबे किसी ने नहीं करवाया, ये तूने खुद करवाया है। ये कहाँ से आई फूलों की बरसात? आज जो लड़कियों के हाथ में तुम गुलाब देते हो, कहाँ से आया? हिस्ट्री पढ़ो इस्लाम की। जब इस्लाम फैलने लगा ना, वो 10-10 हज़ार मुजाहिदीन लाखों लाखों पे भारी पड़ गए। यहूद और नसारा ने मंसूबे बनाए, ये बताओ कि इस्लाम को कैसे कमज़ोर किया जाए, इस्लाम को शिकस्त कैसे दी जाएगी। तो किसी ने मशवरा दिया था, इस्लाम तलवारों के ज़ोर पर इस्लाम को शिकस्त नहीं दे सकते, ताकत के ज़ोर पर मुजाहिदीन को नहीं हरा सकते। किसी ने एक मशवरा दिया था, अगर मुसलमानों को नीचा करना है ना, मुजाहिदीन को शिकस्त देनी है ना, तो एक काम है, जब किले के अंदर मुजाहिदीन मुसलमान दाखिल होना तो किले के दीवारों पर बरहना लड़कियों को खड़ा कर दिया जाए, खूबसूरत नंगी लड़कियों को खड़ा कर दिया जाए और उनके हाथों में गुलाब दे दिए जाएं। वो फूलों की बरसात करेंगी। अगर किसी एक मुसलमान ने भी देख लिया, अगर किसी एक मुजाहिद ने भी देख लिया, समझ लो इस्लाम की कड़ी गिर जाएगी, इस्लाम कमज़ोर हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह। लेकिन तारीख पढ़ के देखो, इन यहूद और नसारा के नापाक मंसूबों की कैसी छज्जियाँ उड़ाई गई है। अल्लाह अल्लाह। इस्लाम पढ़ के देखो, मुजाहिदीन की हिस्ट्री पढ़ के देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब अल्लाह अल्लाह मुजाहिदीन के सिपे सालार को पता चला कि लड़कियां खड़ी हैं और लड़कियां नंगी हैं, उनके हाथों में फूलों के तबाक हैं, उनके हाथों में गुलाब हैं,
جو ہمارے اوپر بکھیرے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سپہ سالار نے قرآن پاک کی آیتوں کو تلاوت کرنا شروع کیا۔ اے لوگوں، مرنا ہے مرنا، اپنی نکاحوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی پیٹوں کی حفاظت کرو۔ تاریخ بتاتی ہے قسم خدا کی ہزاروں کا لشکر نگاہیں نیچے کر کے گزر گیا، کسی بھی مجاہد نے کسی لڑکی کی طرف کو نہیں دیکھا۔ اب ان کے ہاتھ میں گلاب تھے، انہوں نے پھینک دیا اور کہنے پہ مجبور ہو گئی، عیسائی سنو، یہودیوں سنو، تم جھوٹے ہو، تمہارا دین جھوٹا ہے، ارے قرآن سچا ہے، مسلمان سچا ہے، مسلمانوں کا نبی سچا ہے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول یا رسول اللہ، یہ کس کا طریقہ ہے؟ کس کا طریقہ ہے؟ وہی ہماری بیٹیاں کرتی ہے، وہی ہماری بہنیں کرتی ہے۔ اللہ اللہ، کون بولا جس کے ساتھ مجاز ہے ہم ان کا استقبال کریں، ہم ان کا ویلکم کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، اگر اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہو، اپنی بچیوں کو ممبئی کی آواروں کا آئیڈیل مت دو، اپنی بچیوں کو پاکستانی سیریل دکھانے کے بعد فیشن کے نام پر بے حیائی مت کرواؤ، عریانیت مت کرواؤ۔ اگر گھروں میں لانا ہے فاطمہ زہرا کی صورت لے آؤ۔ جس دن فاطمہ زہرا کا آئیڈیل تمہارے گھروں میں آ گیا، اللہ تمہارے گھروں کو جنت کا گہوارہ بنا دے گا۔ بے شک تمہیں جانا تمہیں مانا، ملک کا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ